Hare Krishna, everyone. Shalini, if you're ready, you can start. Can you hear me? Yes. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवा गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पश्यता देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Welcome back, everybody. So we have to start from 2.14 today, but just revise a little bit what is happening. 2.11 onwards, Krishna has started because Shri Bhagwan Uvacha, Bhagwan ne bolna shuru kiya. Kya bolna shuru kiya? He is trying to dispel all the doubts of compassion, the wrong compassion that Arjun is having. तो भगवान सबसे पहले, क्योंकि अर्जुन ने सरेंडर करने के बाद भी बोल रहे हैं कि मुझसे तो नहीं होएगी लड़ाई, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो भगवान 11th में बोलते हैं, वी कैन ऑल गो बैक टू द वर्स, अशोचयन, जो सोचने लायक नहीं है, जो शोक करने लायक नहीं है, उस पे आप शोक कर रहे हो, है ना। दो वर्ड्स यहाँ यूज हुए हैं, अशोचयन और अनवशोचन, जो जिसपे जो सोचने के जो what that is not worthy of lamentation, you are lamenting. तो क्यों कह रहे हैं भगवान ऐसे? अब ये कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो आपको इसके you have to learn to read in between questions. भगवान तो वहां उसकी शक्ल देख रहे हैं ना, तो उनको समझ आ रहा है, तो वो अर्जुन का थॉट यही होगा ना कि क्यों नहीं, क्या शोक करने वाला नहीं है। तो वो गतासून अगतासून, जो जा चुके हैं उनके लिए भी नहीं और जो रह गए उनके लिए भी नहीं। सो वन हु आर डेड, उनके लिए भी नहीं सोचना, और जो अलाइव है उनके लिए भी नहीं सोचना। बड़ी मुश्किल बात है। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों नहीं करना? फिर अर्जुन क्वेश्चन पूछेंगे। तो 12th पे आते हैं। तो 12th में भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसा कभी था ही नहीं कि तुम, मैं और ये राजा लोग ना रहे हों। दिख तो रहे हैं पर उनको, है ना। तो और ऐसा भी नहीं है कि फ्यूचर में नहीं रहेंगे। एंड वी एक्सप्लेन्ड हाउ इट वर्क्स, यू नो, समथिंग व्हिच इज बिकॉज भगवान तो हमेशा से थे, बट he appeared only in the middle when we could see him, but that doesn't mean he was not there in the beginning. ऐसा भी नहीं है कि बाद में नहीं रहेंगे। तो यही उन्होंने इस तत्व को बताने के लिए बताया कि हम हमेशा ही रहने वाले हैं, और ऐसा है कि हम हमेशा ही थे भी। बट अर्जुन का क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको समझने के लिए we gave an example of rope and snake, that sometimes what evidently हम देख पाते हैं वो हमारा भ्रम भी होता है। जैसे कि गोल्ड, इफ वी सी गोल्ड, उससे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, बैंगल्स बनी, नेकलेस बना, तो आपको दिखा, पर जब वो नेकलेस बन गया तो गोल्ड तो फिर भी था ना उसमें। it has taken a form, but it was always gold. And then if you melt it, if you go to the jeweler again and melt it, it again become gold. So जो बीच में था, जो फॉर्म ली, उसमें उसकी एग्जिस्टेंशियल वैल्यू तो नहीं खत्म हुई ना, गोल्ड ऑलवेज रिमेन। इसको आगे हम फिर आगे और समझेंगे। तो वो कहते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि ये फ्यूचर में नहीं रहने वाले। तो फिर क्वेश्चन आता है, पर जब हम मरते हैं तो दर्द तो होता ही है ना। चलो आगे नहीं रहने वाले, पर अभी जब भी मैं इनको मारूंगा इनको दर्द तो होगा। तो भगवान उसके बाद 13 में क्या समझाने की कोशिश करते हैं? प्रोसेस ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। वो कहते हैं कि जब हम चाइल्डहुड से एडल्टहुड में आए और उसके बाद ओल्ड एज में आए, तो कोई दर्द हुआ? बड़ी स्मूथली ये प्रोसेस चला ना। जब आप छोटे से बड़े, आपको लगा आप वही हो, क्योंकि आप कोई और हो जो अंदर है उसके, है ना, तभी तो आपको कोई चेंज ही नहीं लगा। तो इसी तरह जब एक बॉडी चली जाएगी, दूसरी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी, जब यहाँ आपका इस बॉडी का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो फिर भी आपको दर्द नहीं होगा। तो फिर, पर हम कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी दर्द होता है। तो किसको दर्द होता है? सो वी अंडरस्टूड दैट डे द सटल बॉडी, है ना। तो सटल बॉडी को दर्द होता है, माइंड, बॉडी एंड ईगो, जो हमने डिस्कस किया था।
पर अब फिर अर्जुन का क्या क्वेश्चन हो सकता है, जो आप सबका भी क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं मुझे तो फिर भी लगता है दर्द होगा। तो अभी इस लेवल पे भगवान 2.14 में यही समझाएंगे कि क्या करना चाहिए। चलो अभी आपको समझ नहीं आ रहा, जैसे आपको भी नहीं आ रहा ना, अर्जुन को भी नहीं समझ। अर्जुन वाज जस्ट रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ अस कि नहीं समझना। अर्जुन हालांकि नर नारायण ऋषि में से नर है, ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं आ रहा होगा, बट उन्होंने हमारे लिए ऐसा ही दिखाया कि चलो नहीं समझ आ रहा। सो देन भगवान ने 2.14 बोला, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतन सुख दुःखदा आगम्पायनो अनित्यास् ताम तितिक्षस्व भारतः। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, मार्क इट। इनफैक्ट इसको अपने फोन का स्क्रीन सेवर बना लो, बिकॉज दिस विल कम हैंडी इन ऑल योर टू सॉल्व ऑल योर लाइफ प्रॉब्लम्स, जहां हमसे डिसीजन नहीं हो पाएगा स्पेशली। तो क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पे, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय। मात्रा इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे मात्रा, कितनी मात्रा में हम पानी डालें चाय बनाने के लिए, कितनी मात्रा में दूध डालें, है ना, मेजर करने के लिए। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ बताया गया। मात्रा स्पर्श, स्पर्श क्या होता है, जो हमारे सेंसरी परसेप्शन है, जो हमारे सेंसेस है 5 तरह की। तो मात्र स्पर्श से तो कौन्तेय, तो हे कुंती पुत्र, जो इंद्रिय विषय हैं, जो सेंसरी परसेप्शन है, केवल शीत उष्ण सुख दुखदा, सर्दी और गर्मी की तरह सुख और दुख देने वाली हैं। ठीक है, क्यों? अगेन अ साइलेंट क्वेश्चन। आगम अपायनः, ये आने जाने वाले हैं। 2 रीजन दिए भगवान ने, आगम अपायन, अनित्य और टेम्पररी है, क्षणिक। तो क्या करें ये भी बता रहे हैं। ताम तितिक्ष स्व भारत, सहन करने का प्रयास करो। जितना सुख दुख फील होता है वो आने जाने वाला है, टेम्पररी है, जस्ट लाइक द सीजन्स। सो डू व्हाट? टॉलरेट। अब ये भगवान कह रहे हैं, है ना, solution to all the problems, just tolerate। अभी माइंड में बहुत सारे ऐसे वो क्वेश्चन वाले बबल्स आ रहे हैं, ऐसे कैसे टॉलरेट कर लें, कोई सामने से आके मारे क्यों टॉलरेट करें, हमें क्या जवाब देना नहीं आता? भाई क्षत्रिय खून है हमारे अंदर भी, मेरी मम्मी ने बताया मैं खत्री हूँ, है ना, तो हम जवाब नहीं देंगे? ठीक है, भगवान बता रहे हैं। देखो हमने उस दिन ये डिस्कस किया था ना कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी जो हमें डिस्ट्रेस या हैप्पीनेस फील होती है, 3 कुछ चीजों से होती है ना, पर्सन, ऑब्जेक्ट, सिचुएशन, है ना। इसी में हम कुछ ऐड करते हैं तो हमें डिस्ट्रेस या हैप्पीनेस होती है। हमने एग्जाम्पल लिया था कि अभी हमें पता चले कि द एयरप्लेन हैज क्रैश्ड, इट विल नॉट अफेक्ट अस सो मच, है ना, क्रैश हुआ, होते रहते हैं, एयरप्लेन का तो काम ही है, फेल हो गया, क्रैश हो गया। बट द मोमेंट टू दिस सिचुएशन, इफ यू एड समथिंग लाइक अ रिलेशन, है ना, कि मेरी फ्रेंड थी उस फ्लाइट में, नाउ इट विल कॉज यू डिस्ट्रेस। या somebody became topper in UPSC exam, okay, होते रहते हैं टॉप, my sister has become the topper, रिलेशन ऐड किया ना आपने, संबंध बनाया, अब क्या हुआ, हैप्पीनेस, बहुत खुशी हुई। तो अभी हम पिन पॉइंट कर रहे हैं कि व्हाट कॉजेज अस ऑल दिस। भगवान अल्टीमेटली तो यही समझाना चाहते हैं, पर क्योंकि अर्जुन अभी नाइव बिहेव कर रहे हैं तो वो बोल रहे चलो फिर तुम टॉलरेट कर लो, तुमसे कुछ नहीं हो रहा ना, तुम्हें हो रही है ना दर्द, कर लो, पर सहन कर लो, चलो आगे बढ़ो, समझोगे, एंड तक 18 चैप्टर तक तो समझ ही जाओगे ना। तो अभी के लिए, पर हम साथ साथ में डेसिफर करने की कोशिश करते हैं कि भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं। सो यही जो थिंग्स, पर्सन, सिचुएशन फेवरेबल हो जाती है तो उससे हमारी राग हो जाता है, अनफेवरेबल हो जाती है उससे हमारा द्वेष हो जाता है। द बिगिनिंग ऑफ द ड्युअलिटीज, एंड देन उसके बाद फिर जैसे जैसे माइन्यूटली हम इसमें बढ़ाते जाएंगे
वैसे वैसे ड्युअलिटीज इंक्रीज होती जाएंगी। तो हमने ये भी समझा था कि मात्र स्पर्शस की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम कोई हमारे बॉडी में कोई डिजीज होता है, हमारी सर्जरी होती है, तो हमें एनेस्थीसिया दे दिया जाता है ना। एनेस्थीसिया देने के बाद हमारा हाथ कोई काट दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दर्द के लिए पिन पॉइंट कर रहे हैं ना, तो क्या क्या हो जाता है जब एनेस्थीसिया होता है? इनसेंसिटिविटी हो जाती है, नॉट ओनली टू द ग्रॉस बॉडी बट टू द सटल बॉडी। आपका दिमाग भी सुला दिया जाता है उस टाइम पे, है ना। मन, बुद्धि, अहंकार सब सो जाता है, आप काट लो। तो कोई एक चीज है ना, हमने पिन पॉइंट की, इनसेंसिटिविटी। तो अब अपने प्रेजेंट लाइफ में ये इनसेंसिटिविटी हम कैसे ले आए? बाय नॉट डिटैचिंग टू द रिलेशंस, है ना। इनसेंसिटिव हो जाएंगे तो अच्छा मैं दया ही नहीं करूं, ये भी सवाल आएगा, है ना। दया करो, अटैच नहीं करो अपने आप को। अब कैसे इसको आगे हम लेके जाएं? क्योंकि भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो ये संबंध है इसको हटाना होगा, क्योंकि ये संबंध जो है ये आगमा पायनो है और अनित्य है, तो इनको हटाने पड़ेंगे। इनको नहीं हटाने पड़ेंगे तो आपको आना जाना पड़ेगा यहाँ पे। ये आने जाने वाले संबंधों को नहीं हटाएंगे तो इसका एक तरीका तो ये है कि हम समझ लें कि वी आर ऑल सोल्स एंड वी आर कनेक्टेड टू कृष्णा, है ना। सबका भगवान से कनेक्शन है, और इसलिए तो ये कनेक्शन तो ठीक कनेक्शन हो गया। जहां पे भी भगवान का एलिमेंट बीच में ले आओगे ना, तो बिना इनसेंसिटिव हुए आपकी अटैचमेंट दूर हो जाएगी उस चीज से, बिकॉज यू हैव ब्रॉट अ बिगर सोर्स ऑफ अटैचमेंट। दैट इज वन वे। बट अब इसके बाद भी क्वेश्चंस आते हैं कि मैं तो छोड़ना चाहता हूँ पर मुझे नहीं रिलेशंस छोड़ते। ऐसा भी होता है ना कि चलो मुझे समझ आ गया पर मेरी मम्मी को तो समझ नहीं आया, वो तो नहीं छोड़ने वाली। तो इसके लिए एक स्टोरी है। एक राजा थे, उनके पास एक बहुत बड़े संत आए, तो उन्होंने पूछा कि मेरा मंगल किस में है, समथिंग दैट कैन ब्रिंग मी अल्टीमेट पीस, बताइए आप मुझे। तो उन्होंने यही जवाब दिया कि आप ये राग छोड़ दें, ये देश का जो आप भार संभाल के बैठे हैं राजपाट का, इसका आप राग छोड़ दें और भगवान से अनुराग कर लें, मंगल ही मंगल है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं तो छोड़ दूंगा, ये राज मुझे नहीं छोड़ेगा, है ना। ये मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं तो मेरे को समझ आ गई आपकी बात। तो वो बोलते चलो घूमने चलते। उन्हीं के बाग में आगे गए। घूमते घूमते क्या किया, संत ने एक मैंगो ट्री था उसको हक कर लिया, पकड़ लिया उसको। तो राजा ने बोला आप चलिए आगे। कह रहे मैं कैसे चलूं, ये पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं आपने पकड़ा है। कह रहे नहीं नहीं इन्होंने मुझे पकड़ा है। तो आप छुड़ा लीजिए तो आप आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही हमें भी ये भ्रम है कि हमें किसी ने पकड़ा हुआ है, पर पकड़ा हमने हुआ है। द मोमेंट वी अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस कि हमने पकड़ा हुआ है और हमें ही छुड़ाना है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, है ना। जड़ भारत की कहानी हमने सुनी थी ना, भारत की, याद है आपको? स्टार्टिंग में हमने की थी 3 लाइफ्स ऑफ जड़ भारत। किसी को याद है कि नहीं? याद है? नियति क्विकली आप सुनाओगे क्या थी वो कहानी? फर्स्ट लाइफ है सिर्फ। First life, okay, Jada Bharat was a king, a very prestigious, a very famous king. भारत के सबसे बड़े king थे, and उनके पास सारी riches थी, everything that you can think of, money, दासी, good family, everything. But then he understood कि life की true happiness lies in surrendering, lies in bhakti yoga, जो पैलेस में रहकर नहीं हो सकती। Why? Because पैलेस में बहुत ज्यादा रजोगुण होता है, mode of passion. You can't meditate. Sattva gun itna nahi kar sakte. So he decided to leave everything, renunciate everything, and he went to the forest to meditate. और सोचा कि अब मैं फॉरेस्ट में जाऊंगा, कोई ह्यूमन कनेक्शन नहीं होगा, आई विल जस्ट सिट, आई विल जस्ट चैंट एंड आई जस्ट मेडिटेट अपॉन भगवान। एंड एज वी हैव ऑलरेडी रेड इन भगवद गीता, जो भी लास्ट थॉट हमारे माइंड में होता है डेथ के टाइम पे,
we get that in our next life. So he started meditating and he thought कि बस यही शास्त्र पढ़ूंगा, meditate करूंगा, so that 24 hours a day I'm giving to Bhagwan. One day he was just meditating and pass में he saw a mother deer and she had a baby, but she was injured. तो जड़ा भारत को meditation के time पे वो रोने की आवाज आई and he got very distracted. He thought नहीं देखूंगा, मेरा कर्म तो बस भक्ति है. I will not break my meditation. I'll continue doing this. But then he saw the deer crying and he got attracted to that, and then he went to the deer to help. And the deer died because बहुत बुरी तरह injured था. But जो baby deer था, that stayed, that was safe. So अब जड़ा भारत सोचने लगा मैं क्या करूं? That baby deer, cute, imagine like a small baby animal is there. I cannot leave it. So he started taking care. सोचा मैं थोड़ा खाना पीना पिला देता हूँ. Once the deer is of age, I will leave it and then he can live independently. So he started taking care of the deer. सुबह नाश्ता खिलाना, lunch खिलाना, dinner खिलाना, पानी पिलाना, सुलाना. Just like, if you have a pet, you know how it goes. You start thinking as if that pet is your own baby. I've been through that, so I know what that feels like. So that Jada Bharat started taking care. इतना attachment हो गया deer से that he couldn't let go of the deer only. पूरा दिन रात even अपने meditation में बैठते थे, but भगवान की जगह पूरे टाइम ये होता था, ओ मैंने डियर को लंच नहीं खिलाया, मैंने डिनर नहीं खिलाया. तो पूरे टाइम instead of thinking about भगवान, he started meditating upon the deer. And then when he was very old and he died, he left his body, and instead of thinking about Bhagwan, he ended thinking about the deer, and in his next life he took birth as a deer. Yeah. So दया करना बुरी बात नहीं है, दया तो करना है. कंपैशन तो सबसे बड़ा हमारा एक भक्त के लिए कंपैशन होना बहुत जरूरी है. प्रीति सबसे, रीति सिर्फ अपने भगवान से, है ना. वो सारा दिन वहां पे बैठे गंडकी नदी के किनारे, बहुत ही डिवाइन नदी जहां से शालिग्राम प्रकट होते हैं, वहां बैठ के सारा दिन चिंतन करते थे भगवान का. और फिर बन गए सेवियर. और फिर सेवियर ही नहीं बने, अटैच कर लिया अपने आप को कि मैं नहीं रहूंगा तो इसका क्या होगा. आपके एफर्ट के बिना वो इस दुनिया में आया है, आपका कोई उसमें रोल नहीं है. वो जाएगा, उसमें भी आपका कोई रोल नहीं है. फिर आप मिडिल में क्यों अपना रोल बना के बैठ गए कि मैं नहीं होऊंगा तो इसका क्या होगा. और ये हमें सबको लगता है, हमें, हमारे आसपास के लोगों को, सबको ये लगता है कि हम नहीं होते ना तो ये नहीं होता. जबकि भगवान बता रहे हैं आगम अपाइनो, आने जाने वाले हैं. ऑल द रिलेशंस, ऑल द सिचुएशंस, कुछ भी ठहरने वाला नहीं है, अनित्य. जैसे मूवी चल रही होती है ना, तो एक सीन, एक की तो क्षण रहता है, फिर तो आगे बढ़ जाता है. कोई भी चीज एक मिनट के लिए हमारे साथ होती है एंड वी कैरी इट ऑल अवर लाइफ. 20 साल के बाद भी वो फाइल खुलवा लो, उसने तब कहा था मुझे, मैं भूली नहीं हूं ये बात. 20 years back, she was my good friend, but she said that. अब क्या किया, रेंट फ्री रहने की जगह दे दी किसी को, एनिमी को या फ्रेंड को, ऐसे ही. फिर कैरी करते रहे. इवेंट थोड़ी सी देर का था और उसको आपने, यू हेल्ड ऑन टू इट. और अब उसके बारे में ही सोचोगे, और सोचना आपने किसके बारे में. एम आई मेकिंग एनी सेंस? हाँ. तो जब तक नहीं समझ आ रहा, दुख आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, भगवान बता रहे हैं कि आ रही हैं, तो दोनों ही रहने नहीं वाली, है ना. सुख और दुख दोनों ही नहीं रहने वाले. तो सुख में क्या करें, अभी तक तो हम सारा हमारा फोकस दुख पे है, तो सुख में क्या करें. सुख में भी नहीं, खुश भी नहीं होना, क्योंकि खुश हो गए तो दुख होने का चांस बन जाएगा, है ना. जो चीज अभी आपको खुशी दे गई, तो उसके जाने, वो तो जाएगी, क्योंकि आगमा पायनो है, उसने तो जाना है, तो फिर दुख आ जाएगा. पर अगर हम न्यूट्रल रहेंगे, अगर हम सह जाएंगे जो कुछ भी है, तो फिर क्या होता है वो भगवान आगे फिर बताएंगे. अभी तक तो उन्होंने यही बोला. एनी क्वेश्चंस? क्लियर है? ओके.
तो ये नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। यम ही न व्यथन्ते इते पुरुषं पौरुष ऋषभः समदुःखा सुखम धीरम सो अमर्तवाय कल्पते। सो यम ही न व्यथन्ते, पुरुष ऋषभ। यहाँ पुरुष ऋषभ अर्जुन को कहा गया है। पुरुष ऋषभ कौन होता है? ग्रेट अमंग मेन। सो अर्जुन, यू आर ग्रेट अमंग द मेन। जो पुरुष इनसे, किनसे? आगमापायनो जो मात्र स्पर्श हो रहे हैं, उनसे जो विचलित नहीं होता, जो डिस्टर्ब नहीं होता। सम दुख सुख धीरम, कौन? जो सुख दुख में धीर रहता है। equipoised in both happiness and distress, so अमृतत्वाय कल्पते, वो निश्चित ही अमृत के योग्य है। अमृत क्या? मृत का ऑपोजिट। मृत मतलब मरना, अमृत मतलब नहीं मरना। तो वो मुक्ति के योग्य है, एलिजिबल फॉर लिबरेशन। ठीक है, क्योंकि मृत तो बॉडी होती है, तो बॉडी से रिड होना ही तो मुक्ति है ना। that you don't get birth again in this material world, that is mukti। तो अमृत हो गए। So Krishna explained that both the sensations that we are talking about, they are fleeting, and encouraging him कि ये कौन समझ सकता है? जो पुरुष ऋषभ है ना। कुछ श्रेष्ठता की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पे। भगवान का हर एक वर्ड का मतलब है कि ये साधारण लोगों के समझने की बात नहीं है। हर कोई नहीं समझेगा। आपको चुप करा देंगे, हो रही है दर्द, चुप करो, रोना है अभी। हम गए हैं किसी की डेथ पे, हम रोएंगे नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा कि हम दुखी हैं? तो रोएंगे हम, है ना। और किसी की खुशी में अंदर से चाहे जो मर्जी हो, हमें हंसना है, कोई बात नहीं, हमें खुश होना है। सो भगवान ये कह रहे हैं कि ये आसान लोगों का काम नहीं है इन ड्युअलिटीज में एक्ट करना, क्योंकि पुरुष ऋषभ, अब मतलब छोटी छोटी चीजों पे हम लोग अटक जाते हैं। कभी कभी मंदिर में भी ना, ये मेरी जगह है, भगवान के पास जा रहे हो, भगवान से मिल रहे हो, भगवान के लिए कुछ सुनना है, या उनको हम वैसे तो हम दर्शन देने जाते हैं अपने भगवान को, भगवान के दर्शन थोड़ी लेने जाते हैं। हम कहते हैं देख लो आज मैं इतना सच के आया हूँ, हमें थोड़ी ध्यान होता है। बट वहां जाके भी मैंने कई बार देखा है, ये मेरी जगह है, यहाँ मैं बैठती हूँ रोज आके सत्संग सुनने या भजन करने। अरे आप, ये भगवान बता रहे हैं कि पुरुष ऋषभ, ऐसे जो पेटी थिंग्स के बारे में हम सोचते हैं, क्या हम पुरुष ऋषभ कहला सकते हैं अपने आप को? तो इसका मतलब हमें तो समझ ही नहीं आने वाला ना। तो सो वी हैव टू रेज अवर स्टैंडर्ड ऑल्सो ऑफ अवर बीइंग। हम किन किन चीजों पे लड़ जाते हैं, कभी हम सोचते भी नहीं है। और अभी भी होगा, ऐसा नहीं है कि आज ये पढ़ लिया 2.14 15, कल से हम पुरुष ऋषभ बन जाएंगे। But next time any situation comes, at least we can evaluate is from the point of view of Krishna कि है क्या यार, हम इस लायक हैं, पुरुष ऋषभ है क्या? मतलब किस बात से परेशान हो रहे हैं, है ना। मेड आधा घंटा लेट आए, क्या मतलब, इसी पे गुस्सा कर लो। अपनी, आपके पास एनर्जी है जो आप डिवाइन के लिए लगा सकते हो, और आप उसको किन किन चीजों में वेस्ट कर देते हो। तो भगवान के कहे हुए हर वर्ड को अपने दिमाग में उसका मंथन करो, उसके बारे में सोचो, मेडिटेट ऑन इट। आर वी पुरुष ऋषभ? नो वी आर नॉट। अर्जुन इज, भगवान उसको भी रिमाइंडर दे रहे हैं, नहीं तो अर्जुन भी बोल सकते थे ना। इसीलिए बोल रहे हैं कि यू आर बेस्ट अमंग द मेन। So if we want to become best, if we want to understand what Krishna is saying, we have to also upper our standard. उसी लेवल पे बैठ के नहीं सोच पाएंगे। तो क्या कि साधारण पुरुष नहीं सह सकता, साधारण पुरुष तो पिसता रहता है ना। पर जो सह गया वो धर्मात्मा, जो पिस गया वो दुरात्मा। दुरात्मा मतलब ये नहीं है कि जो साधारण लोग हैं, जो इनको नहीं समझ पा रहे, उनसे हमको हीन भावना करें या उनको हम छोटा समझें, या बट अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट फॉर एवरीबडी। You have to up your level to understand what Krishna is saying. So, in dualities,
Krishna is expecting us to be equipoise. That means happiness and distress दोनों में एक जैसा सम रहना. समाधि क्या होती है? समाधि यही होती है ना, सम रह के अपने माइंड में आप सम हो जाते हो, उसी को समाधि कहते हैं. यस बेटा. अर्षा. I just had this doubt about distress. Sometimes situations are really bad and that induces a lot of distress that your body can't really ignore or tolerate as such. So how is it possible to tolerate that level of distress? And like ऐसी situations में how can we use this particular verse to, you know, like understand it better or understand our situations better? Do you mean some bodily disease, कोई प्रॉब्लम आ जाए आपकी बॉडी के साथ? Mental distress. हाँ, तो देखो ना, इसीलिए तो भगवान समझा रहे हैं कि एक तो वो आने जाने वाला है ना, और एक वो अनित्य है, क्षणिक है, हमेशा भी नहीं रहने वाला, तो वो चले ही जाएगा. अब आप उसमें कैसे, हमने 2.11 में समझा था ना कि जब कोई चीज होगी उस पर रिएक्शन देना समझ आता है, डोंट होल्ड ऑन टू इट, है ना. कोई चीज को हम 5 मिनट पकड़ रहे हैं और कोई चीज को हमने, छोटी सी चीज को हमने घंटों पकड़ लिया, अब जो 20 साल के बाद भी तक पकड़ के बैठ जाते हैं, तो वो आपको, उसमें आपका कुछ कंट्रीब्यूशन तो है नहीं ना, आप उसको ठीक तो नहीं कर सकते हो, वो तो अपने हिसाब से ही बदलेगा, क्योंकि वो सीजन की तरह आ रहा है और जा रहा है. डिस्ट्रेस हमेशा नहीं रहने, कोई भी चीज जब भगवान कह रहे हैं ना, तो ये मानो कि वो हमेशा नहीं रहने वाला, तो उसको उस वक्त पे सह गए तो आपने उससे अपनी इंपॉर्टेंस कम कर दी. इसको हम छोटी छोटी चीजों में आप एक्सपेरिमेंट करके देखो इसको अपनी लाइफ में. जब छोटी प्रॉब्लम आएगी और उसको आप टॉलरेट कर जाओगे और उस पर रिएक्शन नहीं दोगे, वो थोड़ी देर के बाद ना अपने आप इनविजिबल हो जाएगी. बट इफ यू कीप थिंकिंग अबाउट इट, आप उसको बड़ा कर देते हो उसी प्रॉब्लम को, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती. कोई एग्जाम्पल दो मुझे जो आप बोल रहे हो ना. तब I meant people like there are some people who have severe depression or like some things that you can't really that your body you can't ignore and वो सब face करना ही पड़ता है, उसको हम ऐसे ignore या tolerate नहीं कर सकते. तो ऐसी problems में does this verse apply या फिर is that the same thing that they are talking about? मेरे को बस उसमें doubt था. हाँ बेटा, भक्तों को तो कभी डिप्रेशन होता ही नहीं है. आप उठा के देख लो, भक्तों के चरित्र उठा के देख लो, कभी किसी ने सुसाइड नहीं किया, कभी किसी को डिप्रेशन नहीं हुआ. उसका रीजन ही ये है कि कोई भी सिचुएशन आएगी ना, देखो हम आगे आगे हम समझेंगे, जब हम कर्म का समझेंगे, जब हम वी विल स्टार्ट टेकिंग ओननेस ऑफ द एक्शंस. आपको डिप्रेशन हो रहा है क्योंकि आपका फोकस अपने ऊपर नहीं है, आपको ये लगा आपके साथ कोई कुछ कर गया, अब आप फंस गए, है ना. अब आपने जो सॉल्व करनी थी प्रॉब्लम, उसको ना करके आपने दोष आरोपित कर दिया कि इट इज बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, इट इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग दैट दिस इज हैपनिंग. बट व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट एनीथिंग दैट हैपेंस टू यू इज द रिजल्ट ऑफ योर ओन एक्शंस, मे बी नॉट. अब जो नॉर्मल इंसान है उसको तो अपना ये वाला जीवन दिखता है, वो बोलता है मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, इतनी अच्छी हूं मैं, नेवर हर्ट एनीबडी. बट देख लो, स्टिल आई गेट हर्ट, still people trouble me. But you have not seen your past life. When you understand that you have created this life for you, it is based upon your actions and desires, then you start taking ownness. जब आप ओन करने लगते हो अपनी प्रॉब्लम एंड आपका आप दूसरे के ऊपर नहीं दोष आरोपित करते, तो एक तो आपने अपना रिलेशन उनसे खत्म किया, फिर धीरे धीरे आप अपने आप से भी वो रिलेशन, आपका रिलेशन अभी अपनी बॉडी से भी तो आप बना के बैठे हो ना, जिस बॉडी में फंसे बैठे हो उससे भी एक रिलेशन बनाया, फिर आप उससे भी कट ऑफ, सर्जिकली कट ऑफ करोगे हर एक चीज को. जो भक्त होता है ना, वो ऑपरेट करता है हर एक सिचुएशन को. ये सिचुएशन आ रही है, मैंने जरूर कुछ किया, ये मेरे को कुछ बोल के गया. डिप्रेशन कैसे होता है, कोई आया उसने आपको बोल दिया अरे तू किसी लायक नहीं है, तो आपने हीन भावना ले ली, ओ माय गॉड आई एम नॉट रियली वर्थ इट. अब आपने उसके ऊपर सोचना शुरू किया, आपने सोचा, आप डिप्रेस हो गए. बट भक्त है जिसको भगवान कह रहे हैं कि
तो वो सर्जिकली डेसिफर करेगा हर बात। वो बोलेगा अच्छा ये मेरे को बोल के गया है, अरे मैंने बोला होगा ना किसी जन्म में, इसको बोल दिया होगा, मैं भी कम नहीं हूं ना, इस जन्म में तो ठीक हूँ, पिछले जन्म में मैंने बोला होगा इसको, मैंने थप्पड़ मारा होगा, ये आके मार गया, सह जाता हूँ, खत्म हो जाएगा, हिसाब क्लियर, है ना। अब पकड़ के नहीं रखूंगा ताकि अगले जन्म में ना आना पड़े इसको थप्पड़ मारने, क्योंकि ये क्रम है, ये चलता रहेगा। जब तक हम इसको एक भी दोस्त, एक भी शत्रु अगर रह गया तो दोबारा आना पड़ेगा हिसाब करने, ये हम आगे समझेंगे। पर अभी क्योंकि हमने आगे वाले चैप्टर्स नहीं पढ़े तो भगवान ने बोल दिया ना टॉलरेट कर लो, तो मान लो भगवान की बात कि अगर कह रहे हैं तो यही सोल्यूशन है फॉर द टाइम बीइंग, देन वील अंडरस्टैंड। ऐसी कोई भी चीज है जो लॉजिकली सॉल्व नहीं होगी भगवत गीता के एंड तक, यू विल गेट ऑल द आंसर्स, बट स्टिल ही हैज जस्ट स्टार्टेड स्पीकिंग, अभी तो 4 वर्ष ही बोले हैं उन्होंने, है ना। तो अभी तक उनकी ये डायरेक्शन है, for the time being, whatever happens, we will start practicing, we will tolerate. Krishna will answer all the questions, but he is just making us eligible. धीरे धीरे समझ के, एक एक चीज को समझ के, तो जब हम पकड़ेंगे इन चीजों को तो हम उन पे, ये डिप्रेशन होने का रीजन ही ये है कि हम पकड़ के बैठ जाते हैं, we don't let it move, फ्लो करने दो, हर एक चीज आने जाने वाली है, चली जाएगी। आज 4 लोग बुरा बोल रहे हैं तो 4 लोग अच्छा भी बोलते हैं हमारे बारे में। एक बार मैं आशिया का ही ले लूं क्योंकि शायद उसका कंटिन्यूशन में होगा, शालिनी फिर आपसे। हाँ, I understand that point, but कुछ ऐसी चीजें होती हैं beyond depression also, like bipolar disorders, personality disorders, ये सब, which I mean, there's sometimes you can't control your emotions or even tolerate them. They just exceed your limits or whatever. I don't know how to explain my point. नहीं मैं समझ रही हूँ बेटा, क्योंकि आप अभी जो भी सारी प्रॉब्लम्स बता रही, चाहे बॉडीली प्रॉब्लम्स हो चाहे मेंटल प्रॉब्लम्स हो, इट हैज टू डू विद बॉडी ना, एंड वी आर नॉट दिस बॉडी, है ना। Right. इसीलिए तो भगवान बता रहे हैं, देही अलग से बता रहे हैं ना, कि देही है जो देह को क्रॉस करता है, ओल्ड एज फिर निकल भी जाता है, तो हम तो वो है ही नहीं ना, क्योंकि हमने अपना एक रिलेशन बनाया हुआ है इस देह के साथ, तो इसकी प्रॉब्लम्स को हम अपना मान लेते हैं। पर ऐसा नहीं है कि अब कल से बोल दें, अब किसी को पैर में फ्रैक्चर हो जाए, बोले मैं तो हुई नहीं है, होता रहे तेरे को, अभी हम उसका वी विल डील विद इट, बट विथ we will keep in our mind that I am not this body, so I will not give up my, जैसे अब मेरे को भक्ति करनी है, अब आज मेरे को सुबह बुखार था, मैं उठी तो, पर अब दिस इज इम्पोर्टेंट, उसको इतनी इंपॉर्टेंस देनी क्यों है अभी उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे, पॉप अप पिल, मूव फॉरवर्ड। अब बेड थोड़ी जाएंगे उसको लेके, क्योंकि उसने अपने हिसाब से चलाना है, उसका काम है ये, उसका धर्म है ये। हमारा धर्म क्या है कि हमें अपना गोल, वी हैव टू कीप अवर गोल इन माइंड। धीरे धीरे छोटी प्रॉब्लम से डील करेंगे, बड़ी प्रॉब्लम से भी डील करना आ जाएगा। छोटी में अटक जाएंगे तो बड़ी तक तो पहुंचेंगे ही नहीं ना, है ना। मैंने बताया था मुझे वर्टिगो था, मैं फिजियोथेरेपी किए बिना उठ नहीं पाती थी बेड से, ऐसे इतनी इतनी मेडिसिन खानी पड़ती थी। अब 3-4 साल से तो मुझे पता भी नहीं है कि मुझे है, होता भी होगा, कभी कभी होता है, बिकॉज फिजिकल डिसऑर्डर है, होता होगा, होता रहे, हु केयर्स। जितना टॉलरेट कर सकते हो उतना टॉलरेट करो। एक भगवान भी तो ये कह रहे हैं ना कि लिमिट आपकी अपने आप बनेगी, धीरे धीरे छोटी चीजों को टॉलरेट करेंगे तो बड़ी चीजों को भी टॉलरेट करना आ जाएगा। ये सारी जितनी भी आप फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये सारी हमारी, ना हम सटल बॉडी है ना हम ग्रॉस बॉडी है ना, तो इनको छोड़ना पड़ेगा ना हमें, धीरे धीरे हमें इससे, जैसे संबंध हमें चीजों से, सिचुएशन से और ऑब्जेक्ट से हटाना है, वैसे ही अपनी बॉडी से भी हटाना है, बट अभ्यास से हो जाएगा, विथ प्रैक्टिस, बिलीव मी, विथ प्रैक्टिस वी विल बी एबल टू डू इट। अभी तब तक टॉलरेट कर जाएंगे, क्योंकि क्रिएशन ही ये सारी हमारी अपनी क्रिएशन है। ये भगवान ने तो, हमारा जो सोल है अंदर वो भगवान का ही पार्ट है, सेम पोटेंसी, बट लिमिट कर रहे हैं अपने आप को। जैसे मैंने उस दिन बताया था ना, एनर्जी सेम आ रही है, एसी की अलग वोल्टेज है और छोटे बल्ब की अलग वोल्टेज है, आयन की अलग वोल्टेज है, एनर्जी सेम आ रही है, लिमिट कर देते हैं बीइंग इन अ बॉडी। छोटे बल्ब से बड़े बल्ब वाला काम नहीं हो सकता, उस लिमिट हो गई वहां पे एनर्जी,
आप अपने आप से अपनी लिमिट बना रहे हो, अपने आप को लिमिट कर देते हो अपनी एनर्जी। हाँ शालिनी। When you spoke about tolerance, it's if I talk about like mental tolerance, we keep on thinking about the same thing because maybe your mind is looking for a solution or an answer, और जब तक वो solution और answer नहीं मिलता वो thoughts बार बार आते रहते हैं because you want to get out of it. So I know there's art of surrendering and आपने बोला कि उसको tolerate करते रहो क्योंकि वो temporary है, निकल जाएगा. But there are situations when literally then situations are not in control and your mind also flickers a lot and keeps on thinking until you get a solution about it. तो जब तक हमें सारी बात समझ नहीं आ रही तब तक हम ये बोल देंगे कि भगवान, हम एक इधर उधर ही तो देखते हैं ना। जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है हम सोल्यूशन लेने का भी, बहुत बड़ी सोल्यूशन लेने के लिए डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं। तो अभी बोलो कि जगत डॉक्टर ने बोला टॉलरेट करो, तो उस पर ध्यान इतना जाएगा नहीं। जब हम उसके रिलेशन में सोच के उस किसी और को उसमें अटैच करते हैं कि इसकी वजह से ये हुआ या इसकी वजह से ये हुआ या मेरी वजह से, तब वो बढ़ जाती है प्रॉब्लम। बट अगर आप सह जाओगे ना तो वो बढ़ेगी नहीं, बिलीव मी। मतलब किसी की बात को इतना पर्सनल नहीं लेना, कुछ भी हाँ, हो, हाँ, सिचुएशन हो कि कुछ भी देखो हो like ग्राउंड, अभी हम खुद ही अपने आप को नहीं जानते तो दूसरा हमें कैसे जानेगा? तो उसकी बात को हम क्यों माने? हमें दुख तो इसी बात का हो रहा है ना कि कोई हमें ऐसा कह कैसे गया। तो जब आप अब ये भगवत गीता समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, आपको समझ आ रहा है कि मैं तो खुद को ही नहीं जानती थी, मैं तो यही सोचती थी आई एम दिस बॉडी, आई एम शालिनी। पर yeah. भगवान तो कह रहे हैं आप नहीं हो शालिनी, क्योंकि शालिनी पहले भी नहीं थी और बाद में नहीं थी। तो जो पहले नहीं थी बाद में नहीं थी तो वो मिडल में नहीं हो सकती। और कह रहे हैं आप पर पहले भी थे और बाद में भी थे। तो वो जो मैं पहले और बाद में थी वो मिडल में क्या है वो ढूंढना है ना मेरे को। तो जब आप ही अपने आप को नहीं जानते तो XYZ आपको आपके बारे में और आके बता रहा है, तो उसके लिए आपको अपने लिए दुख ले लोगे, डिप्रेस हो जाओगे या कंपैशन करोगे? धीरे धीरे कंपैशन आने लगेगा कि भगवान इसको भी तो दो ये ज्ञान, ये पहले खुद को पहचाने और फिर ये मेरे रियल को, मेरे को भी पहचाने। अगर किसी कोई ऐसा रिलेशन है जिसको हम अबैंडन नहीं कर सकते, हमारे आसपास के लोग हैं, है ना, भगवान ने हमें निमित्त बना के भेजा है, उनको भी निमित्त बना के भेजा है हमारे जीवन के लिए, उनको छोड़ना नहीं है। पर राइट वे में तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना। पहले खुद को तो करें फिर तो उनको करेंगे, फिर राइट रिलेशन समझ आएगा। तब तक टॉलरेशन से बहुत ताकत बढ़ती है। हम अपनी इतनी एनर्जी जाया करते हैं, पर अगर हम उसको कंजर्व, टॉलरेशन मींस यू आर जस्ट कंजर्विंग। भगवान कह रहे हैं होगा कुछ, है ना, मेरे कर्मों का कोई फल होगा। धीरे धीरे समझ आने लगेगा। आप अपने आप को क्वेश्चन आंसर कहीं नहीं जाने की जरूरत, इसीलिए भक्त को कहीं नहीं जाने की जरूरत पड़ती, कोई कभी नहीं जाता साइकाइट्रिस्ट के पास, वो सारे अपने आप ही ऑपरेशन करता है अपना बैठ के। ये सिचुएशन हुई, अच्छा मैंने किया होगा, मेरे साथ हो live गया, अच्छा example of नहीं it. होगा। हाँ, I've seen a live example like I could relate, like my father is literally like this what you are mentioning about. Whenever I see like whatever arguments my mother and he's having, he never reacts, never ever reacts, and never ever take it personal, never ever feel sad or bad about it. Or whenever I get angry and I'm literally, there are times when I am shouting, then also he don't react. क्योंकि कई बार क्या होता है पेरेंट पर्सनल ले लेते हैं कि ये मेरे से छोटा है, ये कैसे मुझ पे चला रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदतमीजी से बात करने, something like that. So that also doesn't happen. I don't know where did he get that tolerance from, but yeah, I can take an inspiration from him on this. वर्च्यू है ये। बट याद कर लो ये वर्स, जब कोई सिचुएशन, नेक्स्ट सिचुएशन कोई ऐसी आएगी, मैं नहीं कह रही हूँ कि आए आपकी लाइफ में, पर अगर आए दोनों ही खुशी है, तो भगवान ने बोला ज्यादा ना नाचना है, कोई बात नहीं, मिल गया अवार्ड तो मिल गया, भगवान ने कुछ इक्विप किया होगा, कुछ मुझे एबिलिटी दी हो गई तो मिल गई, मैं बन गई बेस्ट डांसर, है ना, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि अनित्य है। आज मैं बेस्ट हूं, कल मुझसे कोई बेस्ट आ जाएगी। अगर मैंने खुश हो गई तो मुझे दुखी भी होना पड़ेगा, इसलिए खुश भी नहीं होना। इक्विपोइज्ड। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू।
When you learn this art, then you'll thank him for happiness, and then you'll start, eventually, believe me, you'll start thanking him for distress also. सिखा गया यार, ये दुख आया था, ये मुझे एम्पावर कर गया, अब मैं इतने को मैंने टॉलरेट करके क्रॉस कर लिया, अब इससे बड़ा आएगा तो मैं उसको भी टॉलरेट कर लूंगी। अभी बुखार ही नहीं सह पाते तो कैंसर का पता चल जाए तो बैंड बज जाती है, ओहो अब क्या होगा। बट धीरे 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 जब छोटी चीजों को टॉलरेट करोगे तो बड़ी भी टॉलरेट करनी आ जाएंगी, क्योंकि वैसे भी और कोई चारा नहीं है आपके पास। वो रहने, जिसने रहना है उसने उतनी टाइम रहना ही रहना है। The thing will happen, your reaction will make the situation pleasant or unpleasant for you anyways. कोई लोग बहुत छोटी चीजों में बहुत परेशान हो जाते, देखते हैं ना हम अपने आसपास, और कोई बहुत बड़ी, जैसे ये बता रही है शालिनी, किसी का इसी भी बात पे अपनी वाइफ से डिवोर्स हो जाता है, कोई इसी बात पे बच्चे को अबैंडन भी कर देता है। कितनी बदतमीजी की, चलो जाओ कहीं और रहो जाके, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कई पेरेंट्स ऐसे, तो क्या फर्क पड़ता है, आपका अपना रिएक्शन है, वो आपकी लाइफ को जैसा भी आप बनाना चाहोगे बन जाएगा। अल्टीमेट गोल ध्यान में रखते हैं। तो क्या कहा उन्होंने 15 में कि जो धीर है, देखो क्वालिटीज देखो ना, भगवान क्या क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब 2.11 में उन्होंने बोला जो पंडित होते हैं, क्वालिटी बता रहे हैं भगवान, जो धीर होते हैं वो क्या होते हैं, इक्विपॉयस, somebody who's wise, who knows what is right and wrong, वो पंडित है, वो धीर है, और उसको अमृत पद प्राप्त होता है, उसको यहाँ से मुक्ति मिलती है। सो हमारे को वी हैव टू एलिवेट अवर लेवल। अब इसको पढ़ लेते हैं, फिर अगर कोई और क्वेश्चंस होंगे तो। आयुष, आप आज पहली बार आए हो बेटा? Ayush is Ayana's friend. Hello. Yes, ma'am. This is my Okay. first class over there. ओके ओके, सो हो सकता है आप थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे हो क्योंकि हमने थोड़ा सा पहले पढ़ लिया है, बट प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ ठीक है। Yes, ma'am. Thank you. सॉरी, मैंने अभी रियलाइज किया कि आप पहले नहीं आए। देयर वाज वन बॉय हु वाज देयर इन प्रीवियस क्लास आल्सो, आई थॉट ही इज Anmol? नहीं, नॉट अनमोल, पिछली क्लास में किसी विकास। कोई आए, देयर वाज सम बॉय। ओके, सो हु वांट्स टू रीड? Shreya can read. 13 तक तो पढ़ लिया था ना हमने। Actually हमने 13 नहीं पढ़ा था, हमने 12 पढ़ लिया था। तो 13 से पढ़ लो, प्रॉपर्ट्स तो सारे पढ़ ही लेते हैं। 13 Shreya, 2.13. Yes. Text 13. Dehino asmin yatha dehe kaumaram yovanam jara tatha dehantara paraptir dhirastatra na muhyati. As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. Purport: since every living entity is an individual soul, each is changing his body every moment, manifesting something sometimes as a child, sometimes as a youth, and sometimes as an old man. Yet the same spirit soul is there and does not undergo any change. This individual soul finally changes the body at death and transmigrates to another body. And since it is sure to have another body in the next birth, either material or spiritual, there was no cause for lamentation by Arjuna on account of death, neither for Bhishma nor for Drona, for whom he was so much concerned. Rather, he should rejoice for their changing body from old to new ones, thereby rejuvenating their energy. Such changes of body account for varieties of enjoyment or suffering according to one's work in life. So, Bhishma and Drona, being noble souls, were surely going to have spiritual bodies in the next life, or at least life in heavenly bodies for superior enjoyment of material existence. So, in either case, there was no cause of lamentation. Any man who has perfect knowledge of the constitution of the individual soul
the super soul and nature, both material and spiritual, is called a dhira, or a more sober man. Such a man is never deluded by the change of bodies. Okay, The Shreya, you can summarize and then someone else can read. Okay, so the text 13 says that since our physical bodies just go through like ages of changes, like from boyhood to youth to old age, similarly the soul also passes through one body to another, which means when somebody dies, the soul passes to another body, and nobody is like nobody can be like, this happens with everybody basically. So the purport explains that every living entity, the soul in the bodies, they get manifested in something else, like in some other body later, when the physical body is no more of that particular time. So that's how Krishna was explaining that even like Bhishma and Drona and everybody else's souls will be transmitted to another body, and that Arjuna didn't have to worry about just everybody in that way, because if they are noble people, then their soul will be transmitted to some heavenly spiritual bodies, that they will be transmitted to a spiritual body wherein they can experience like heavenly or superior experiences in their lives. So that is what it said, and that the person who has the perfect knowledge of the individual soul, superior soul, and nature, spiritual and materialistic both, then they are called the dhira. They are called a dhira, like a sober man, I think. Okay, thank you. Arsha, you want to go next? Yeah, Mataji, you good, want to add Shreya. something? Yeah, good. So, important line is that according to one's work in life, जनरली अर्जुन का डिलेमा यही है ना कि ये तो इतने अच्छे लोग हैं, चलो दुर्योधन वगैरह तो खराब है, उनको तो मैं मार भी दूं तो समझ आता है, पर द्रोण, गुरु द्रोण और भीष्म पितामह ये तो इतने अच्छे हैं। तो भगवान यहाँ पे प्रभुपाद ये एक्सप्लेन कर रहे हैं ना कि एनीवेज जो बुरे हैं उनके साथ तो वो भी कह रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू आर कंसर्न तो जो अच्छे होंगे या तो वो इतने अच्छे होंगे कि वैसे ही वो स्पिरिचुअल भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, और नहीं भी होंगे, अगर रह गया है उनका कोई, उनके एक्शंस इतने अच्छे हैं तो दे विल बेटर एंजॉय अपना एक बेटर मटेरियल बॉडी मिलेगी, हेवनली प्लैनेट्स मिलेंगे, जहाँ पे यहाँ से तो बेटर ही लाइफ है ना, वहाँ पे डिजीज ओल्ड एज कम आती है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है, एंजॉय करने तो उनको, इफ देयर एक्शंस आर सो गुड, व्हाई डू यू वांट टू होल्ड ऑन टू देम कि वो यहीं पे धरती पे ही सफर करे, चले जाएंगे कहीं बेटर जगह पे, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? या Arsha, you can finish this one. The Mayavadi theory of oneness of the spirit soul cannot be entertained on the ground that spirit soul cannot be cut into pieces as a fragmental portion. Such cutting into different individual souls would make the supreme cleavable or changeable against the principle of supreme soul being unchangeable. As confirmed in the Gita, the fragmental portions of the supreme exist eternally, Sanatana, and are called Kasara. That is, they have a tendency to fall down into material nature. These fragmental portions are eternally so, and even after liberation, the individual soul remains the same, fragmental. But once liberated, he lives an eternal life in bliss and knowledge with the personality of Godhead. The theory of reflection can be applied to the super soul who is present in each and every individual body and is known as the Paramatma, who is different from the individual living entity. When the sky is reflected in water, the reflections represent both the sun and the moon and the stars also. The stars can be compared to the living entities and the sun or the moon to the Supreme Lord. The individual fragmental spirit soul is represented by Arjuna, and the Supreme Soul is the personality of Godhead Sri Krishna. They are not on the same level, as it will be apparent in the beginning of the 4th chapter.
If Arjuna is on the same level with Krishna and Krishna is not superior to Arjuna, then the relationship of instructor and instructed becomes meaningless. If both of them are deluded by the illusory energy Maya, then there is no need of one being the instructor and the other being the instructed. Such instruction would be useless because in the clutches of Maya, no one can be an authoritative instructor. Under these circumstances, it is admitted that Lord Krishna is the Supreme Lord, superior in position to the living entity Arjuna, who is a forgotten soul deluded by Maya. I have a doubt about the fragmental wala thing that they talked about, the Mayavadi theory, but later on, when the theory of reflection is being discussed as when the reflection of stars versus the reflection of the sun or the reflection of the moon, so the superiority between Krishna and Arjuna is being described through that theory as to how Arjuna is not superior to Krishna. Krishna is the superior one, as he is the instructor and Arjuna is the instructed, according to the theory of reflection. And theory of Mayavadi I didn't understand as well. ओके सो मायावादी अभी हम अगर उसको बहुत डिटेल में ना जाके समझे तो मायावादी के हिसाब से वी मर्ज इनटू द सुप्रीम, है ना, मतलब उनके लिए हम भी सुप्रीम ही है। उनको लगता है कि जब हम यहाँ पे आए हैं, द सुप्रीम हैज कम हियर, टेकन अ फॉर्म एंड अ शेप एंड इट विल एंड एंड गो बैक एंड बिकम वन। तो हम फ्रैगमेंटल पार्ट नहीं है, क्योंकि उस थ्योरी के हिसाब से तो भगवान भी जब यहाँ आए तो उनको भी माया के अंडर होना चाहिए, क्योंकि हम भी, जो मायावादी सोचते हैं वो सोचते हैं कि हम भी सुप्रीम ही हैं और हमने आकर यहाँ पे शेप ली, एंजॉय किया, बाद में मर्ज कर गए एग्जिस्टेंस में मजे करके। तो फिर तो भगवान फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्ट कैसे कर रहे होते हैं? अगर भगवान भी सेम ही सिचुएशन में होते तो वही बता रहे हैं कि हम माया के अधीन हो जाते हैं यहाँ के, हम भगवान के जरूर वी आर पार्ट एंड पार्सल, बट वी हैव अ इंडिविजुअलिटी, we are individuals, we don't go and merge and become one. मायावाद की थ्योरी जो होती है वो उसके हिसाब से बूंद सागर में जाके मिली और एक ही हो गई, ऐसा नहीं होने वाला। हमारी अपनी इंडिविजुअलिटी हमेशा ही रहने वाली। अभी के लिए इतना समझो, बट यस you could understand the latter part clearly, so it's okay. किसी दिन बात करेंगे, मुझे वैसे मायावाद पे बात करना बहुत अच्छा भी नहीं लगता, बट वी विल टॉक। So next We can end, I guess it's 10. Okay, so 14th और 15th हम छोटे छोटे हैं, we can read it next time. कुछ और कोई burning question हो तो we can take it and then, or you can think more about it and we can do it in next class. We can understand these verses like, देखो कभी कभी क्या होता है कि कोई डेडली डिजीज हो जाए ना, या ये सोचो कि आप चल रहे हो और आपको, हाँ डेडली डिजीज हो गया, चलो तो डेडली डिजीज के लिए आपको स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स करने पड़ते हैं, है ना, बट यू एक्सेप्ट देम बिकॉज आपको एक गोल पता है कि मेरा डिजीज दूर हो जाएगा ये चेंजेस करके। ऐसे ही भक्ति में जब आपने अपना एक गोल बना लिया ना, तो ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आएंगी, इनको आप एज इट इज अगर समझना शुरू कर दो विदाउट क्वेश्चनिंग अ लॉट, जस्ट स्टार्ट टेकिंग वर्ड्स ऑफ कृष्णा एज इट इज, कि जितना अभी बोल रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं इसमें हमारी भलाई होगी, इट विल बी लाइक, इट विल वर्क इन योर फेवर। क्योंकि माया का काम है आपको फंसाना, माया का काम है आपको अपने आप से दूर नहीं जाने देना, बिकॉज यू नो आप अधीन रहे हो हमेशा। तो अब आपने भगवान की तरफ मुख कर लिया है तो वो आपको स्टॉप करने की कोशिश करेगी। बट अभी ये सोचो कि जैसे कि कोई कांटे को निकालने के लिए कांटा लगता है ना, जब पाँव में कांटा चुभ जाता है तो कांटे से ही निकलता है, दर्द जरूर होता है। अभी डिफिकल्ट होगा ये आपके लिए सब कुछ करना, ये चेंजेस लाने, अपनी पूरी पर्सनालिटी को इस तरीके से समझना, बट अगर लॉन्ग टर्म गोल समझोगे कि इट विल मेक यू इटर्नल,
it will connect you to your eternal being, then बहुत बड़ी चीज नहीं दे रहे हम. ठीक है, आपको समझ आया आयुष आज? यस मैम. कोई क्वेश्चंस हैं आपके? मैम एक क्वेश्चन है मैम, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, बट आई हैड वन क्वेश्चन. तो बेसिकली जैसे आपने बताया था कि इंसान शुड बी लाइक वाटर, कि ही शुडंट रिएक्ट टू वेदर ही इज फीलिंग गुड. जब अच्छी चीज होती है तब भी ही शुडंट रिएक्ट, एंड जब बुरी चीज होती है तब भी ही शुडंट रिएक्ट, सो दैट थिंग्स पास बाय वेरी इजीली, और वो छोटी लगने लग जाती है हाइंडसाइट में, व्हिच आई टोटली एग्री विद. बट मैम मतलब मैं ये बात तो सही बोली, राइट? My understanding of this is right? So my question is, react word is may not be right here. Reaction तो होगा, है ना? Reaction तो होगा. Your tolerance is what is being talked about. React तो आप करोगे, पत्थर नहीं बन जाना. रोने की जगह पे रोएंगे, हंसने की जगह पे हंसेंगे, कैरी ऑन नहीं करेंगे. कई बार किसी की डेथ हो जाती है, उस टाइम तो आप रोगे, यू विल नॉट कैरी इट. कि 10 साल के बाद भी कई लोग रो रहे होते हैं, क्योंकि हमने जब वो वर्स किया था तो मैंने शास्त्रों के हिसाब से बताया था कि जब हम किसी मृत के लिए रोते हैं ना, तो जैसे श्राद्ध के थ्रू हमारा फूड वहां पहुंचता है, हमारा रोना भी उस तक पहुंचता है. तो हम हेल्प नहीं कर रहे रो के, अपनी ग्रीफ को भी बढ़ा रहे हैं. तो यहाँ पे इस दया, मैंने यही समझाया ना कि ना हमें दया छोड़नी है, ना हमें पत्थर बनना है, हमें समझ के एक्ट करना है. जो उस टाइम का रिएक्शन होगा ना, उसको करेंगे. जैसे कि just not holding on to it. If my phone, if I hold it on for 5 minutes, it will give me the weight of a phone only. But if I'll keep my hand with my phone on it for 2 hours, my hand will get jammed. वो हाथ, वो फोन 100 किलो का लगने लगेगा कि ये कब हटे यहाँ से. और यही होल्डिंग ऑन हमारे लिए करता है. बट आप अपना क्वेश्चन पूछो कि आपका ऐसे से रिलेटेड? नहीं मैम, मेरा परसेप्शन ही फिर चेंज हो गया मैम. आई परसीव्ड इट इन अ डिफरेंट मैनर. नहीं, रिएक्शन तो आएगा ना, क्योंकि बट ऑब्वियस हमारे, और रिएक्शन ये नॉलेज के बाद भी आता रहता है. पर जो धीर है, जो इक्विपॉइज्ड है, उसका जो रिएक्शन होगा वो विल बी डिफरेंट देन द साधारण पर्सन. ट्रू है ना? Yes, ma'am. वो that will make you different, that will make you Purush Rishabh, that will make you superior among the men. But that definitely does not mean कि अब compassion ही नहीं है. फिर कहीं गए हम, कहीं कोई मर गया तो उसको बोल रहे अरे तू तो सोल ही है, क्या हो गया, मर गया, आंटी मत रो. आप रिएक्शन अपना उस टाइम के लिए जो अनुकूल रिएक्शन है दोगे, बल्कि यू विल कंसोल द पर्सन एट दैट टाइम. बट उस टाइम जाके ये नहीं बोल सकते कि आत्मा थे चले गए मत रो, मैंने पढ़ा है भगवत गीता में. यू विल गिव द अप्रोप्रिएट रिएक्शन, बट कीप इट इन माइंड कि मुझे इसमें दुख नहीं होना, क्योंकि भगवान समझा रहे हैं कि इसकी गति है, इसकी गति बन गई, इसके कर्मों के हिसाब से इसकी जो भी गति होगी सदगति बनती है. इसीलिए इंडियंस को हमेशा, हमें जो सनातन जो ये पढ़ सकते हैं टेक्स्ट, उनको कभी RIP नहीं लिखना चाहिए. वो कैसे किसी की डेथ पे फटाफट से लोग RIP रेस्ट इन पीस. रेस्ट है नहीं, हमारी सदगति है, हमारी गति चलती रहती है, हमारे को रेस्ट करने का मौका ही नहीं है. तो गति चलती है हमारी. तो हम, पर अब जब आप समझ जाओगे ना, तो आप बहुत दिनों तक नहीं रोगे, आप समझ जाओगे. उस टाइम का रिएक्शन दो, बट टॉलरेट द पेन. Understood, ma'am. Understood. Yes, Sayana. So when we were talking about tolerance, if we understand it through Mahabharat's perspective, we have some degree to where we tolerate things, right? Because at the end, जब अधर्म हुआ अर्जुन के पांडवस के साथ, तो कृष्ण जी asked him to actually fight Arjun. So in that sense, where do we draw the line that okay, ये वाला तो this will pass by, but this is something I need to take a stand up for? भगवान ने अर्जुन को अपने पर्सनल, ये लड़ाई अपनी लड़ाई नहीं है. भगवान ने कभी नहीं बोला द्रौपदी के साथ ये हुआ तो तू जाके रिवेंज ले. ये धर्म की लड़ाई इसलिए है क्योंकि अगर अधर्मी बैठ गए
तो जो राज की जो शी इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ द किंगडम, अगर उसके साथ हो सकता है तो ये तो सबके साथ करेंगे। तो अधर्म को रोकने की लड़ाई करी, पर्सनल विंडेटा सॉल्व करने के लिए नहीं। भगवान ने बोला कि बस अब पानी ऊपर उठ गया, अब तो तू जाके मार ले, इतना तक से नहीं। हमने डिस्कस किया था एक बार है ना पहले, कि ये लड़ाई के पीछे मोटिव, भगवान बार बार इसको क्यों बोल रही है तेरा धर्म है, क्योंकि क्षत्रिय है, तेरा काम है प्रोटेक्ट करना राज्य को। उन्होंने कभी भी नहीं बोला दैट यू आर अ हस्बैंड एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट योर वाइफ, है ना। तो टॉलरेंस, अपने ऊपर कोई भी बात हो रही है उसको, हर एक चीज को आपने टॉलरेट करना है। बिकॉज इफ आई टेल यू समथिंग, ये बहुत हर्टफुल है हमारे लिए, सबके लिए इस बात को मानना, पर वट एवर हैपन्स टू अस वी डिजर्व, बिकॉज वी हैव सोन द सीड्स। पर जब आप भगवान को सरेंडर कर जाते हो ना, ये भी होता है कि हर एक चीज, ये भी नहीं है कि हमारे कर्म का ही रिजल्ट है, कहीं किसी का नया कर्म भी बन सकता है। बट फिर जब भगवान का शरणागति हो जाती है ना, जब हम भगवान में पूरा आस्था रखते हैं, तो हम सोचते हैं कि वो समझेंगे ना, अगर उनको पनिश करना होगा उसको तो वो करेंगे, हम क्यों करें पनिश, व्हाई शुड वी रिएक्ट। हमारे पास दो ही तो ऑप्शन है ना, या तो हमारे पास, हमारे साथ जो हुआ है वो हमारे कर्म का फल है तो हमें सहना है, या किसी का नया कर्म बन रहा है, कोई हमने कभी उसके साथ कुछ नहीं किया, उसमें भी अगर हम रिएक्ट कर गए तो हमारा कर्म बन जाएगा। हमें कर्म नहीं बनने देना अपना। आगे जब हम कर्म योग समझेंगे ना, तो ये गहन बातें हैं, ये समझ आएंगी हमें कि कैसे हमें, हाउ डू वी हैव टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ, कैसे हमें कर्म नहीं बनने देना और क्यों नहीं Yes, बनने but देना। in the sense that matlab I understand where Arjun comes from and by the dharma wali cheez I understand, but when we take it in the context of material world, where do we draw the line that yahan it's not just about me, it's going beyond my control and it's not just about me, and then wahan tolerance is not needed, wahan it's basically adharm, but obviously rules can obviously differ. Obviously, in the sense Mahabharat was very different, and material world का context would be very different. हाँ, तो मटेरियल वर्ल्ड में है ना, कि मटेरियल वर्ल्ड में तभी तो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इफ देयर इज समबडी who tries to hurt you, then you go and complain it to authorities and authorities will take the action. आपको नहीं करना कुछ भी, आप अपने डिफेंस में कुछ कर सकते हो, अगर आपको कोई मार रहा है आप भाग सकते हो, बचा सकते हो अपने आप को, पर आप मारोगे नहीं, क्योंकि आपने क्यों मारना है। अब उसके लिए भी एक सिस्टम एस्टैब्लिश्ड है ना, उसके लिए भी एक सिस्टम एस्टैब्लिश्ड है कि मतलब स्पेसिफिक्स के लिए स्पेसिफिक्स आपका रिस्पॉन्स हो सकता है ना। आई डोंट नो व्हाट आर यू थिंकिंग राइट नाउ, बट जहाँ पे जब बात हो रही है तो यहाँ पे है हमारे मोर टू डू विद व्हाट हैपेंस इनसाइड अवर माइंड, हाउ डू वी डिफेंड अवर माइंड। तो टॉलरेट करने से क्या होगा कि हम धीरे धीरे हमारे को आई नो व्हाट you're asking, बट मैं उस वर्स से रिलेट करके आपको बताना चाहती हूँ कि कोई बड़ा कोई आपको कोई हर्ट कर दे तो आप क्या टॉलरेट ही करते रहो, आपका ये क्वेश्चन है ना। नहीं, वो ऑब्वियसली अगर वो ऐसा कुछ भी करा, क्योंकि अगर वो बहुत बड़ी कोई चीज हो रही है तो वो आपके अलावा औरों के साथ भी करेगा, इफ दैट पर्सन इज अ क्रिमिनल, तो ऑब्वियसली फिर उसको उसके एंड तक आपको जरूर पहुंचाना है by taking care of whatever is prescribed in the rules. Material rules भी तो बने हुए हैं ना। Yes, that was my question. नहीं, वो ऐसे छोड़ नहीं देना कि नहीं टॉलरेट कर लिया, आप रहो, आप औरों को भी हर्ट करो। तभी तो भगवान ने नहीं टॉलरेट करने को बोला ना अर्जुन को भी, कि ये आपको ही नहीं है सबको। तो जब ऐसा लगे कि इससे बहुत लोगों का नुकसान हो सकता है या ये बहुत लोगों को हर्ट कर सकता है, तो आप उसके लिए आपका देन इट बिकम्स योर ड्यूटी ऑल्सो, है ना। जब तक मटेरियल वर्ल्ड में यहाँ की भी ड्यूटीज हैं आपकी, बट कीपिंग द गोल इन लाइफ कि हम तो छोटी छोटी उन बातों के लिए कर रहे हैं जो हमें अफेक्ट करती हैं। आके चला भी जाता है इंसान, हम सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, उसको अपने घर में रेंट फ्री जगह दे देते हैं अपने माइंड में
20 साल के बाद 50 साल के बाद वो बंदा है नहीं है, फिर भी हमें, हाँ वो चला जाता है तो कई बार बोलते हैं चल अब ये चला गया, अब इसके साथ मैंने दफना दी अपनी प्रॉब्लम्स भी जो इसके साथ मेरे को थी, अब आज मैंने इसको माफ कर दिया। ऐसा भी मैंने सुना है, कई बार लोग करते हैं when the person leaves the world, बट वो साथ रहते रहते ही कर दो तो आप फ्री हो जाओगे। अलग तरह की एम्पावरमेंट की बात हो रही है, ऐसे आपको कावर्ड बनाने की बात नहीं हो रही। तो स्पेसिफिक्स में स्पेसिफिक रिएक्शंस लगेंगे, समझ। I hope I could answer. I see, sometimes what you're thinking and what I'm thinking might be coming from the some other, तो वो नहीं भी होता, but I'm sorry if I'm not able to make it clear. No, I got it. Okay. Gun has a question. What does it mean to tolerate? Is tolerating just letting it slip with time? Yeah, in a way. Things And which are also- anyways beyond your control, तो और कोई option भी नहीं है ना। But we all do tolerate, right? We don't have an option. So we have tolerated everything that's happened to us from birth till now. That's why we are here. So aren't we all doing it already? If tolerating is just living through it somehow. And if we are just asked to, अगर हम बस ऐसे बस जीना ही है उसके साथ, so that तो we are already doing. I mean, what else? नहीं, टॉलरेशन जैसे अयाना का क्वेश्चन था ना कि अब हमने उसको अथॉरिटीज को दे दिया, हमने अपने लेवल पे उसके साथ अपना कट ऑफ हो गए। टॉलरेशन मींस इसके बाद इसके बियॉन्ड नहीं हमने उसके बारे में सोचना, हम सह गए। जो भी हमने रीजनिंग दी, अपने आप को रीजनिंग दी या हमने अथॉरिटीज को देके उसको उसके साथ अपना कट ऑफ कर दिया। टॉलरेट तब नहीं होता जब हम उसके बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं, वी बिल्ड ऑन इट एंड दैट ओनली कॉजेज ऑफ मेंटल डिजीजेस के कारण भी यही हो जाते हैं ना, जब हम कोई चीज को बियॉन्ड टाइम उसके बारे में सिर्फ सोचे जा रहे हैं, उस पर काम करते जा रहे हैं, कुछ हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, तो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम इन अवर माइंड। सो जितनी भी सेंसरी परसेप्शन है वो आने जाने वाली है, इस बात को ध्यान रखना है। और यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हैप्पीनेस की भी बात हो रही है। यू हैव टू लर्न टू टॉलरेट बोथ ऑफ देम विदाउट गिविंग reactions, loud reactions and elongated reactions. हुई है, समझ आ गया, move on is the key word. अभी आपने क्या टॉलरेट किया? अभी तो इतने अच्छे एनवायरनमेंट में, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, वेयर फॉर एवरीथिंग यू कैन गो एंड बैश योर पेरेंट्स, कुछ भी होता है किसी पे भी जाके हम निकाल लेते हैं। ये तो बड़ा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है। अभी तो दुनिया में निकलोगे तो समझ, आप तो बहुत ही छोटे हो गुण, तो अभी तो दुनिया में निकलोगे तो पता चलेगा कि क्या क्या टॉलरेट करना पड़ता है एट एवरी लेवल, इन रिलेशंस, इन वर्क प्लेस, politically, सब कुछ, हर एक लेवल पे you can get affected by things. But if you learn to tolerate and motive, अपना मेन गोल दिमाग में रखोगे, जो भी आप गोल बनाओगे उस टाइम के लिए, तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखो, अगर कोई गोल बना लो और छोटी छोटी चीजें आपको ना हिला पाए, आप उस गोल तक पहुंच जाओगे। तो ऐसे ही जब अपने आप को, if right now if you are not even in love with Krishna, at least you want to learn more about yourself, so make that your goal, है ना। मेरे को अपने आप को समझना है, तो उसके लिए छोटी मोटी चीजें अगर आती भी हैं तो let them not take my attention, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हूं। इट्स सो गुड टू सी कि आप लोगों के कितने शार्पली आप सोच रहे हो, और रियली ब्लेस्ड। और कुछ, ये वर्ड्स को याद करो, 2.11, 2.14। नेक्स्ट टाइम कौन सुनाएगा मुझे बताओ, बिना पढ़ के? वेरी गुड पंखुड़ी, सबको याद होना चाहिए। मैं किसी को भी पिक कर लूंगी, पंखुड़ी तो सुनाएगी, फिर मैं किसी को रैंडमली पिक करूंगी, बिकॉज ये भगवान की बात, भगवान की लैंग्वेज में ना, ताम तितिक्षा स भारत,
एकदम जब पेन में होते हो ना, ऐसे निकालते हैं भगवान के वर्ड्स। भगवान ने बोला था तितिक्षस्व आगमपाइनो, अनित्या, नहीं रहने वाला ये, आ गई है प्रॉब्लम, इसको मैं नई बर्डन बनाऊंगी, चली जाएगी। क्योंकि अयाना, हम पता है किन किन प्रॉब्लम्स के उसको बड़ा बना देते हैं, इतनी पेटी चीजों को भी बहुत बड़ा बना देते हैं। ये मुझे बोल कैसे गया यार, मैंने कभी इसको नहीं बोला, आई एम ऑलवेज सो पोलाइट विद दिस पर्सन, इसको भी बना लेते हैं भार। आप तो बहुत बड़ी चीज की बात कर रहे हो ना, हम किस किस चीज का बर्डन लेके चलते हैं, फिर वो सामने जैसे ही आएगा ना, वो इतना बड़ा वो पहाड़ खड़ा हो जाएगा बीच में। क्योंकि वो सारी बातें जो गैदर करके जिसको रेंट फ्री रखा हुआ है ना, वो एकदम से सामने जैसे ही वो इंसान आएगा, उसका फोन भी आ जाएगा ना, तो आपको सारी बातें आप रिमाइंडर की तरफ वापस आ जाएंगी, इसने ये किया था, ये किया था, ये किया था मेरे साथ, मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी। होना क्या वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। सच अ वेस्टफुल एक्टिविटी, वेस्टफुल एनर्जी। मैं आपको क्या, मैं खुद ये करती हूँ, है ना। बट देन यू लर्न टू टॉलरेट एंड देन यू सी द डिफरेंस। फिर लगता है अरे मैं किन चीजों में अटकी हुई थी। हेल्प होगी भगवान के वर्ड्स को याद करने से। 2.7 कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, है ना, कि अर्जुन कृपण हुए थे, अर्जुन का ऐसा स्वभाव हो गया था। फिर भगवान ने क्या बोला था, फिर भगवान ने क्या बोला था। तो ऐसे ऐसे बीच बीच में अगर ये वर्सेस को आप पिक करके याद कर लोगे ना, 2.7 इज इम्पोर्टेंट। 2.11 अशोचन अनवशोचस प्रज्ञावादांश, भगवान ने कहा था प्रज्ञावादान, ऐसा नहीं सोचते मैं तो हूँ प्रज्ञावादान, है ना। मैं पंडितों की तरह बातें करती हूँ, अब मैंने पढ़ लिया थोड़ी सी भगवत गीता। फिर भगवान ने बोला 2.14 में क्या बोला था। वैसे तो और भी अगर याद करो तो अच्छी बात है, बट ये मेन की वर्सेस है 2.7, 2.11, 2.14। चलो अब नींद आ रही है, आप सबको सो जाओ। हरे कृष्णा। Shalini is here. Shalini, you can do the pranam. Okay. वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। Okay, Hare Krishna, everyone. See you next हरे week. कृष्णा। Hare Thank you, Krishna. Neetaji. Hare Krishna. हरे कृष्णा बिमला जी। I just admire the clarity of mind of these kids. Yeah, है ना बिमला जी। I really admire. Very good. You are doing really very good, all of you. Wow. Krishna bless you all. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna.